हाय फ्रेंड्स, राजेश here once again. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्या है? हम सब में हीरो. यस, वी ऑल नो दैट राइट. सब में कुछ ना कुछ खास बात होती है. जैसे मैं हूँ या मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उन सब में कुछ ना कुछ खास बात है और वही खास बात उन लोग को हीरो बनाता है. तो ऐसे एक हीरो, एक्चुअली हीरो का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि लाइक मेल जेंडर. हीरो मतलब जिसमें स्पेशल क्वालिटी जो मैं पहले बता चुका हूँ. तो ऐसे ही एक गेस्ट को मैं बुला रहा हूँ जिनका नाम है रेनी. And she's very dynamic personality, and we have been friends for quite long time. Nearly 20 years back, 23 years back, we were working together in a hospital. और फिर उसके बाद टच छूट गया और फिर उसके बाद एक कॉमन फ्रेंड से मिलने गए थे तो वहाँ पे हम लोग वापस कांटेक्ट में आए. तो आई थॉट कि लेट्स टेक हर पॉडकास्ट बिकॉज आई नो शी हैज़ गॉन थ्रू लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स. In fact, she's a very dynamic personality, very bubbly, and with time, how to mold herself. She knows all that tricks of the trade. All that things she knows. तो मिलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा. उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी सुनते हैं. ओके. Always on the grind, yeah, I do this all the time. Yo, wake up in the morning, go get a state of mind. I done feel so many times, but I gotta keep trying. I ain't giving up, nigga, put it all on the line, yo. Hi Rini, welcome to this platform. Hi, स्वागत है आपका. Yes. So Rini, you know that right? It's a platform where we try to motivate common people. Yes. Everyone, not Yes. common only. Everyone. Everyone. Male, female, kids, or so. I know a lot of things about you, but I want audience to know about you. तो first I would like to know कि आपका background कैसा रहा, बचपन कैसा रहा, आप कैसे बहुत मस्तीखोर थी या shy थी? Okay. Just tell us. Okay, guys, he is the one who got me into this. So I'm very, very happy about this concept, and it's very, what to say, motivating concept where it's हर एक में है, everybody has a hero inside them. So that's the reason I somehow got agreed. तो yes, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि I am a bubbly personality, मगर it's not like that since childhood. बचपन में जो आप लोगों ने फेस किया रहेगा, ऐसे बहुत सारे इश्यूज मैंने फेस किए हैं स्कूल में, घर में. Otherwise, it was a nice childhood. My father was a banker. मेरी ममा टीचर थी, and I've got a younger brother too, who was as usual the what to say, the better sibling, good boy. पढ़ाई करता था. I was the one who was to get into trouble most of the time. So yes, that was like quite okay. Yeah, that was how. और like you said कि family बहुत अच्छे घर से थे आप. तो बेसिकली ना ये क्वेश्चन में एक्चुअली बच्चों के लिए है. तो यूजली आजकल के बच्चे दे प्रेफर गोइंग आउट, पिज्ज़ा, बर्गर, मैकडोनल्ड्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ऑल जंक फूड दे हैव एंड देन दे स्पॉइल देयर हेल्थ. So you were also like that at that time? Oh, we didn't have that option. We used to go. See, I come from Jamshedpur. Yeah, we come from. I was born at Jamshedpur. It is a cosmopolitan city because of the Tatas. You know, Tata Steel, Tisco, Telco. So we had people from all part of the country. Magar, हमारे time going to restaurant was a luxury. So बाहर का खाना was a luxury. It was once of a in a blue moon might be. आप कुछ है घर में फंक्शन वगैरह, किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो we used to go out. Otherwise घर का खाना was the best. Best, right? Yes. Even I prefer that. Yes, yes. Yeah, good. So बच्चों सुना क्या? ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है सब बच्चों के लिए एक्चुअली. इस चैनल का मकसद सिर्फ यूथ को और बड़े बुजुर्ग के लिए नहीं है, बच्चों के लिए भी है. तो बेसिक मकसद यही है कि बच्चे लोग थोड़ा अच्छा खाना खाओ, क्योंकि आपके ऊपर हमारे देश का फ्यूचर डिपेंडेंट है. अगर आप स्ट्रांग नहीं रहोगे, आप मेंटली शार्प नहीं रहोगे, तो आगे देश बढ़ेगा कैसे, राइट? यू नो वी आर सराउंडेड बाय एनिमीज़. कोई यहाँ से अटैक करता है, कोई वहाँ से अटैक करता है. हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? यही एक ज़रिया है. अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, एंड देन विल बी गुड टू फाइट विद एनीबॉडी. Internal and external. तो रेनी ये बताइए, आपके करियर जर्नी के बारे में बताइए. लाइक कैसा रहा? वर यू इन द सेम फील्ड और डिड यू स्विच एक जॉब से दूसरे फील्ड, वन फील्ड टू अनदर फील्ड? डिड यू डू दैट? तो अगर ऐसा किया तो कुछ डिफ़िकल्टी आई आपको, और कैसे आप उस डिफ़िकल्टी को पार किए? लाइक हू हेल्प्ड यू इन दैट, और मे बी यू हैव डन इट ऑन योर ओन. You can tell it to our audience. Sure. See, as you know, I am a trained dietitian.
Okay, I started my career way back in 2002 as a dietitian. I had to switch because that time BPO was the flavor of the season, or everybody was into BPO. With BPO, a lot of money, easy money, you know. And you know, when you're young, it's more about earning, enjoying your life, than being or doing it right, kind of. So that is what. I think so. That is what the reason was. What was the reason? क्यों मैंने वो change किया, वो shift किया. और जो shift था career shift में, as usual, आपको पता है, जब आप कोई चीज नया शुरू करते हो तो आपको शुरुआत से शुरू करना पड़ता है. कोई अगर आप उनको बोलो कि मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है मगर मैं नए फील्ड में जा रही हूँ, आप मुझे उतना लीवेज दीजिए, वो कोई आपको कोई देता नहीं नहीं है. देता. तो आपको वो शुरुआत वापस से करनी पड़ती है. Absolutely. I hope you guys know what a phoenix is. The phoenix bird, she actually turns herself to ashes and then she takes a new birth or takes a rebirth from those ashes of her own. तो वो मेरे दिमाग में था कि हाँ, if I am strong enough तो मैं यहाँ भी कर लूंगी. एंड ट्रस्ट मी गाइज, विद इन 6 months आई गॉट द ग्रिट ऑफ इट. और उसके बाद भी मतलब आई स्टार्टेड विद इंटरनेशनल, केम बैक टू डोमेस्टिक, देन आई वेंट टू टेलीकॉम से आई वेंट टू इंश्योरेंस एंड व्हाट नॉट. सो यस, आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड every time I had started with from the scratch, and I'm very very proud of myself because I just started to do it without thinking that failure हो सकता है. क्योंकि जब आप सोचते हो ना कि failure हो सकता है तो आप वो ऑप्शन देते हो खुद को. So it's better to think कि नहीं, मैं कर लूंगी. So that is it. रेनी एक्चुअली काफी लोग ना एक ही फील्ड में ही स्टक हो जाते हैं. They want to come out of it, but they don't dare to take that step. Absolutely. डरे रहते हैं and tension पालते हैं. Then from all over like they get pressurized कि भाई मैंने कुछ किया नहीं लाइफ में. Then at the end of their 50-60s में they regrets and all. So it's always better दोस्तों कि try it. जब आप young हो, give it try. क्या पता click कर जाए. नहीं you have one life. Correct. Yes. Click नहीं भी किया ना, you'll get lot of things to learn. Yes. उस learning से आप कुछ दूसरा चीज करो और वो एक्सपीरियंस आप यूज करो. तो रेनी जी ने यही किया. And I'm sure आपको पहले वाला भी जो काम है ना कहीं it would have helped you. Yes, Definitely. absolutely. Yeah. Every work teaches you something. I had to speak to so many patients. I've seen so much of the, I won't say the world, but different type of people. So you get to know people, how to behave with them. At that young age, it definitely gives you, again, leverage, and it helps you to communicate in your further career. Absolutely. So every experience gives you some learning. So दोस्तों देखा आपने, कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती. तो इन्होंने भी बहुत कोशिश की. प्रॉब्लम्स आती है, मालूम है आपको, राइट? प्रेगनेंसी के वक्त कितना प्रॉब्लम होता है. देन यू हैव टू टेक रेस्ट. वो रेस्ट लेने के बाद अगेन गेटिंग बैक टू दैट माइंडसेट कि नहीं मुझे जॉब करना है. प्रेशर होने के बाद भी बच्चे को पहले 1 साल में तो माय गॉड कितना ख्याल रखना पड़ता है. डे इन डे आउट बच्चा कब उठेगा, कब पॉटी, कभी ये साफ करो, नहलाओ. 50 प्रॉब्लम रहती है. ये आपको भी मालूम है और जो शादीशुदा है वो तो उनको मालूम ही है. सर के बाल कम हो जाते हैं, राइट? हो गए. हो जाते हैं, हाँ हो जाते हैं, हो गए. तो ये सब प्रॉब्लम के बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी. जो अंदर का जज्बा था उसको बरकरार रखा. वो गैप आने के बाद भी, सोचिए 7 साल का गैप होने के बाद ना पब्लिक कंफर्ट जोन में चली जाती है, या तो बोलते हैं छोड़ ना यार, अब हो गया, अब नहीं, लेट हस्बैंड अर्न एंड टेक केयर ऑफ मी. बट इन्होंने ऐसा नहीं किया. तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. जो वहाँ पे महिलाएं अपोजिट हमारे स्क्रीन के अपोजिट में हैं, प्लीज़ लर्न, कंट्रीब्यूट टू योर फैमिली, कंट्रीब्यूट टू योर कंट्री. और हार मत मानिए, कभी भी मत मानिए. घर का ख्याल भी रखना है और घर भी चलाना है और अपना जो पैशन है उसको भी मरने नहीं देना है. इंजॉय कीजिए लाइफ को, ठीक है? तो रेनी जी ये बताइए, आपका रोल मॉडल कौन है? जिसको देख के या सोच के आप मोटिवेट होती हैं, लबी डाउन हो जाती हैं, तो यू जस्ट थिंक ऑफ दैट पर्सन और यू आर सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन. अगर आप ऐसी भी हो तो यू कैन टेल दैट टू आवर ऑडियंस. गो अहेड. ओके. वैसे मोटिवेट तो बहुत सारे लोग करते हैं अपने को लाइफ में. जैसे काफी लोग मिलते हैं, उनसे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है. यू गेट इंस्पायर्ड ऑल्सो. बट if I have to name only one person in this world, so I'm no different. I'll name my mom. Okay. My association with her, although in person, was only for 17 years. But she was a teacher. She was a fighter. She was a social service worker.
Okay. She was a poet, she was a writer, and she never bothered about कौन क्या कहेगा. At that point of time, अब जब आपकी mom इतनी strong होती हैं, trust me, मैंने जैसे आपको पहले भी बोला, I was not this bubbly since childhood. अच्छा. I was under her shadow. I was always intimidated by my mom. Like, oh, she was like a fresh breath of air. Anybody she met started smiling after meeting her, after talking to her. And you know, guys, what is the biggest compliment that I get in my life? People who know me from my past, and they come up and say that you are exactly like your mom. So that is something I am very, very proud of, to be her daughter. तो रेनी ये बताइए कि ऐसा टाइम कभी आया आपकी लाइफ में जब आप काफ़ी डाउन थी, डीमोटिवेटेड थी, और उस वक्त आपने आपको उस सिचुएशन से कैसे उभारा? किसने आपको सपोर्ट किया उस टाइम में? ऐसा कुछ वाकया, ऐसा कोई समय आप हम लोग के साथ शेयर करना चाहेंगे? Well, as all of us go through some phase or the other, sometimes अच्छा टाइम आता है, कभी बुरा टाइम आता है. It's like I always say, time is circular. अगर आप अच्छे टाइम में हो तो फिर बुरा टाइम भी आता है. Yes. अगर बुरा आपको लगता है कि अभी आपका जो टाइम है वो बुरा चल रहा है, तो अच्छा टाइम भी आता है. Correct. But that came with age, with experience. मगर unfortunately for me, it was too early. I was in my 12th. I was 17 years old. Not Okay. even 17, actually. I was 16 when I lost my mother. It was Sorry. very. It's been a long time. It was very heartbreaking. And मेरे 12th के exams 15 days पे थे, and I was not knowing what to do, because you know how a mother is, and such a strong mother in your household. She's the one who's directing your life. Yeah. Who's telling you, come on, आपको IAS बनना है, या फिर आपको AFMC join करना है, आपको doctor बनना है. She Yeah. was the driving force, you know. Yeah. And after that incident, it was an accident. So सब कुछ बहुत sudden हो गया. I was so heartbroken, and I was totally devastated. I was in depression. और बहुत मुश्किल से मैंने वो एग्जाम्स दिए. वो तो अच्छी बात है कि मैंने साल भर पढ़ाई की थी. I got 82% in my 12th. क्या बात है? But it was a very bad phase. And yes, I'd like to share with you guys how I came out of it. मैं नहीं बोलूँगी कि I was like इतनी ग्रेट थी, मैं फटाफट से बाहर निकल गई और कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ. मुझे काफ़ी समय लगा उसमें से बाहर निकलने. ऑलमोस्ट 2 साल लगे. Yeah. Because it's not just anybody in your family, but your mom, okay, who you're so connected with. So मुझे बहुत टाइम लगा. Yes, मेरे friends थे मेरे साथ. मैं हॉस्टल में थी, इसलिए फैमिली नहीं बोल सकती हूँ. I had friends with me, and music is what took me out of it. You know, when you connect with the higher above, वो आप कैसे कर सकते हो? तो म्यूजिक इज वन वे ऑफ कनेक्टिंग टू गॉड, इज व्हाट आई थिंक सो. सो दैट्स द रीजन. तब से म्यूजिक मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. ओके, बहुत सारी चीजें आप एक्सप्रेस कर लेते हो, बहुत सारी चीजें आप समझ लेते हो, और बहुत सारा टेंशन आपका वेयर आउट हो जाता है जब आप कुछ सुनते हो अच्छा आपके हिसाब से. एंड आई लव म्यूजिक all genre, right from Lata Mangeshkar and Suman Kalyanpur to BTS. So I love a variety of songs. हर kind of song आपके अंदर एक different emotion पैदा करता है. Correct, yes, yeah. So it is the greatest support in my life even till today. अच्छा, ऐसा होता है आपको कि कुछ आप गाना सुन रहे हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. I told you it's a out of the world experience. It is a way of meditating. Correct. जैसे आप बोल रहे हो योगा करके मेडिटेशन होता है, मैं बोलती हूँ मेरा मेडिटेशन, मैं ये सब नहीं कर सकती. मेरे लिए म्यूजिक सुनना सुबह उठने से रात के सोने तक बहुत इम्पोर्टेंट है. वो मेरे को अंदर से क्लेंस करता है. करेक्ट. तो कुछ सॉन्ग्स होते हैं जो आपको झूमने के लिए मजबूर कर देते हैं, कुछ होते हैं जो आपको अंदर से हिला देते हैं. तो दोस्तों, इस मंच का एक और मकसद है, राइट, नॉट जस्ट मोटिवेटिंग पीपल. एक समाज के एक छोटे से ऐसे प्रॉब्लम को जो हम लोग, और मैं या तो कोई और नहीं तो कोई ना कोई तो फेस कर रहा होगा. तो मुझे एक चीज़ मालूम है, एक अपने समाज में एक प्रॉब्लम होता है, जैसे लव मैरिज का, इंटरकास्ट मैरिज का. तो उसमें कुछ चैलेंजेस आती हैं. तो आई नो इवन यू हैव डन लव मैरिज, सो डिड यू कम अक्रॉस एनी प्रॉब्लम्स, और आपने उस प्रॉब्लम को कैसे in a nice way, politely, in a soft way handled it?
एंड उसको अपने क्या बोलते हैं, अपने हिसाब से अपने हिसाब से आपने उसको टर्न आउट किया पॉजिटिव वे में। कैसे सबको सही है या एब्सोल्युटली प्रॉब्लम आए स्ट्रगल्स आए उसमें ऐसा है मजेदार बात कि मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, मैं जमशेदपुर से हूँ और ही इज फ्रॉम अ प्रॉपर पुणेकर फैमिली। तो ऑर्थोडॉक्स फैमिली जहाँ पे उन्होंने एकदम क्लियरली मुझे बोल दिया था कि मेरे फैमिली में कोई हिंदी इंग्लिश भी जल्दी बोलता नहीं है। तो उस जमाने में मुझे बिल्कुल भी मराठी नहीं आती थी, नहीं आ रही तो मेरी शुरुआत वहां से हुई कि आपको पहले मराठी सीखनी पड़ेगी। देखो। तो एज यूजुअल आई टोल्ड यू आई एम लाइक अ फिनिक्स, सो आई स्टार्टेड लर्निंग इनके साथ बोल बोल के आज आई एम एब्सोल्युटली फ्लुएंट इन मराठी। मी मराठी खूप छान बोलते हैं। क्या बात है। ओके सो So, इस तरह से आपका मराठी के साथ वो हुआ उतना ही नहीं, हाँ। विथ माई इन लॉज ऑल्सो। इनिशियली उनको भी लगा कि पता नहीं किस तरह की लड़की है, हमारे साथ होगी कि नहीं एडजस्ट, कहीं हमारे बेटे को हमसे दूर तो नहीं ले जाएगी। ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं। मगर यस, आई डिडंट हैव अ मॉम, आई डिडंट हैव अ सिस्टर, और यहाँ पे मेरे पास ननद थी, मेरी सास थी, मेरे ससुर थे, तो आई हैड अ फुल फैमिली एंड माय हस्बैंड इज अ वेरी वेरी लविंग सॉफ्ट पर्सन। तो उससे क्या हुआ कि मुझे इनिशिएटिव लेके मेरी सास को पटाना पड़ा इस शादी के लिए। सो आई टुक हर फॉर मूवीज, आई टुक हर आउट फॉर डाइनिंग, उनको लेके घुमाया करती थी। तो पूरी तरह से मैंने उनको अच्छी तरह से पटाया, तब जाके वो तैयार होगी, चलती कि ये बहू चलेगी हमें। नहीं, बहुत अच्छी है बात है, क्योंकि यू नो यूजुअली लव मैरिज में क्या होता है, जब शादी की बात आती है तो या तो लड़का या तो लड़की बोलती है कि भाई मैं क्यों एडजस्ट करूँ। ये प्रॉब्लम है दोस्तों। पता नहीं आप लोग एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है कुछ टाइम के बाद ना दे जस्ट गिव अप, दे से कि अरे मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे ये सब करना पड़ेगा। बट रेनी जी ने ये सब किया एंड आज सब लोग बहुत खुश हैं लव मैरिज होने के बाद। तो बोलते हैं ना लव मैरिज चलता नहीं है, बेस्ट एग्जाम्पल चलता है, थोड़ा कहीं एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप नीचे अपने आप को दिखा रहे हो या कोई नीचे करने की कोशिश कर रहा है आपको, ये नहीं है। लाइफ का मतलब ही है एडजस्टमेंट करना, और अगर एडजस्टमेंट करोगे आप तो प्यार और बढ़ता है, कभी कम नहीं होता है। वो पॉजिटिव थॉट के साथ आप करोगे तो एवरीबडी विल बी हैप्पी। And you have to also know your love is important or Yeah. your situation is. सिचुएशन, योर ईगो, लोग ईगो को पहले लेकर आते ले हैं, जा जाते हैं। लव को बाद में। Correct. पहले- स्ट्रगल्स है गाइस, स्ट्रगल्स है, मगर आपको ये भूलना नहीं है कि ही इज द पर्सन दैट यू लव। करेक्ट चीज है। मैं पूछना चाहता हूँ, आजकल के बच्चे ना ज़्यादातर मोबाइल में अटके रहते हैं, माँ बाप से दूर, हर वक्त ऐसे ही रहेंगे, बात भी करेंगे तो हाँ ठीक है ऐसे किया मैंने, ऐसे जवाब देते हैं। तो हाउ यू आर मैनेजिंग विद योर सन? Okay. हाउ डिफिकल्ट इट इज? It is very difficult. Okay. Well, I'll not lie कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं करता, सारे बच्चे करते हैं। ओके मगर इतना ही है कि अभी क्योंकि वो 9th में है, आई हैव ट्राइड टू टेक केयर ऑफ द टाइमिंग्स ऑफ द फोन। ऑब्वियसली अपने स्कूल ट्यूशंस में इतना बिजी है कि उसके पास टाइम नहीं रहता, मगर मैं कहीं ना कहीं उसको बता के रखा है कि इतने इतने टाइम के लिए फोन रहेगा, बाकी के टाइम वो फोन मेरे पास रहता है। सो दैट इज हाउ आई हैव ट्राइड टू मेक अ डिफरेंस एंड ही इज क्वाइट अटैच्ड टू मी। तो कुछ बातें वो सुनता है, कुछ नजरअंदाज कर देता है, मगर फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आई एम नॉट सेइंग आई एम द बेस्ट पेरेंट, मैं कोशिश कर रही हूँ, और सब कर रहे हैं। यस हम सब कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जमाने में पेरेंट्स का अप्रोच डिफरेंट था। हमारे जमाने में पेरेंट्स जो थे हमारे लिए बहुत प्रोटेक्टिव थे, इस वजह से हम लोगों को हमेशा दूर रखते थे, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते थे कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, रियल टाइम प्रॉब्लम्स है, तो हमको नहीं बताते थे। तो हमारे पेरेंटिंग में अभी के जमाने में मैं देखा ये सभी करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उनको इन्वॉल्व करते हैं, हम उनको फील करते हैं कि आप भी छोटे से एडल्ट हो, तो आपको भी आज से ही हमारे प्रॉब्लम्स थोड़े थोड़ा आपको पता होना चाहिए, समझना पड़ेगा, ताकि एकदम जब वर्ल्ड में आते हो तो आप ब्लैंक नहीं आओ। तो मैं आपको सिर्फ एक एडवाइस, रिक्वेस्ट, जो भी आप समझे वो देना चाहूंगी कि थोड़ा सा बच्चों को इन्वॉल्व रखे, उनको पूरी तरह से इतना प्रोटेक्टिव मत होइए कि उनको पता ही नहीं कि दुनिया में क्या है, कैसे चल रही है दुनिया, कैसी चल रही दुनिया, और हर चीज जो वो मांगे वो मत दीजिए, एटलीस्ट नॉट टिल दे डिजर्व इट। दे शुड नो कि कभी पेरेंट्स ना भी बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो बच्चे तो माय गॉड मेरे रोड पे लेटते लोटते मुझे चाहिए, दैट इज रियली बैड, दैट्स रियली बैड। हाँ, तो
अगर वो यही बच्चे जब रियल लाइफ में आते हैं और उनको जब फेलियर्स फेस करना पड़ता है या किसी ने उनके बॉस ने ना बोल कह दिया। दिया उनको किसी चीज के लिए, वो पूरी तरह से हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं. Correct. दैट इज आल्सो द रीजन ऑफ हाई सुसाइड अटेम्प्ट्स Correct, इन correct. द टीनेजर्स. टीनेजर्स आल्सो, करेक्ट. सो रेनी जी, कोई ऐसा गाना या डायलॉग आपको याद आ रहा है जो यूजुअली आप जब डीमोटिवेटेड रहते हो, मन नहीं कर रहा कुछ करने का, तो सुन के आप मोटिवेट हो जाते हो, एक्साइटेड हो जाते हो, एनर्जी आ जाती है, कुछ ऐसा सुनाना चाहोगे हमारे दर्शकों को? जरूर. ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको एनर्जाइज करते हैं, मगर अलग अलग है. जी. तो उसमें से अगर आप मुझे चूज करने के लिए बोलेंगे तो मैं एक ही बताऊंगी. ओके. अभी के लिए, क्योंकि एक ही बता सकते हैं. सो विच इज फ्रॉम कल हो ना हो. दो लाइन सुनाती हूँ मैं आपको. श्योर श्योर. हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा वाओ. कल हो न हो. तो यूजुअली कहते हैं कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है. तो आप भी काम करती हैं, काफ़ी बिजी रहती हैं, तो आपके सक्सेस के पीछे किसका हाथ है? ऑब्वियसली मेरी सक्सेस के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है. हाँ. क्योंकि फॉर अ स्ट्रॉन्ग वुमेन टू कम आउट एज स्ट्रॉन्ग, आपके पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ चाहिए जो कहे आपको कि तू कर जो करना है, मैं हूँ तेरे पीछे. तो जब मैंने ये डिसीजन लिया था मेरे बेबी का भी कि मुझे सबैटिकल लेना है, मुझे मेरा करियर से पहले मेरे को अपना मदरहुड ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो ऑब्वियसली इमोशनल इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज भी थे, इमोशनल इश्यूज भी थे. तो ही सपोर्टेड मी सेइंग कि तू जो भी करे मैं तेरे साथ हूँ. So that is very important when you know he's standing behind you as your support. And to add to it, मेरा बेटा, he is somebody who keeps me on my toes. कि मम्मा ये करना है, मम्मा वो करना है, you have to work, you should work. Smart women's work. So these are the two people who have always been my weakness and my strength. Thank you so much for coming to this platform. अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इंसिडेंट्स शेयर किया अपनी ऑडियंस के साथ, मेरे साथ. मैं भी काफ़ी चीज़ कुछ सीख के जा रहा हूँ आपसे. मैं पहले भी काफ़ी मोटिवेटेड रहता था और आज इतने सालों बाद मिलने के बाद भी सेम, यू आर सेम लाइक दैट, बबली, एनर्जेटिक, ऑलवेज रेडी टू डू समथिंग न्यू एंड डिफरेंट. दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू. हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा. मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सबसे मेरी लाइफ शेयर करने के लिए. थैंक यू फॉर गिविंग दैट अपॉर्चुनिटी टू मी. थैंक यू. कैसा लगा आपको आज का सेशन रेनी जी के साथ? जरूर बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में. इससे मैं भी मोटिवेटेड रहूँगा नए नए वीडियोज़ लाने के लिए. और कोई गेस कर सकता है कि नेक्स्ट पर्सनैलिटी कौन आने वाली है, उनका क्या ऑक्यूपेशन या क्या जॉब कर रहे होंगे? अगर आप गेस कर सकते तो डू ट्राई इट. टेक केयर. बाय बाय.